વંદે ગુજરાત. સ્વાગત અને અભિવાદન સ્વીકાર કરશો. હું છું વૈદ્ય નિર્મલ આલોદરિયા, આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર, સ્ટેટ મોડેલ આયુર્વેદ કોલેજ કોલોડા ખાતેથી સમગ્ર આયુષ પ્રભાગની ટીમ વતી આપ સર્વેનું ખૂબ ખૂબ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આયુષ પ્રભાગ દ્વારા દર શુક્રવારે સપ્તાહમાં એક દિવસ આયોજિત થનારી આયુષ્ય સ્વાસ્થ્ય વ્યાખ્યાન શૃંખલા, અને એ શૃંખલાનો આજે 164મો એપિસોડ. આ શૃંખલાની અંદર દર્શક મિત્રો વર્તમાન સમયના સ્વાસ્થ્યલક્ષી જે પ્રશ્નો છે, જે રોગો છે, એને એકદમ સરળતમ ભાષામાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એ રોગને ઓળખવાનો, પ્રારંભિક તબક્કામાં જ એના ડાયગ્નોસિસ કરવાનો, અને પછી એ વિષયમાં આયુષની વિવિધ પથ્થીઓ, આયુર્વેદ, યોગ, નેચરોપેથી, હોમિયોપેથી વગેરે પથ્થીઝમાંથી કઈ પથ્થી વધારે સારી રીતે અને સચોટ ઉપાય સૂચવી શકે એમ છે, આ વિષયની ચર્ચાઓ આપણે જનરલી આ કાર્યક્રમની અંદર કરતા હોઈએ છીએ. આજે પણ મૂત્રમાર્ગના સંબંધિત રોગો, એ રોગોના વિવિધ લક્ષણો, એ લક્ષણોની હાલમાં ઉપલબ્ધ સારવાર અને આયુર્વેદ, પર્ટિક્યુલરલી આયુર્વેદની અંદર એવા કયા ઉપક્રમો છે કે જે મળમાર્ગના રોગોની અંદર વધારે સચોટતાથી, વધારે સારી રીતે સારવાર આપી શકે એમ છે, આની આપણે ચર્ચા કરીશું. એ પણ ચર્ચા કરીશું 24મી માર્ચ આરોગ્ય વિભાગ માટે ખૂબ જ એક મહત્ત્વનો દિવસ, શા માટે એને ઉજવવામાં આવે છે એની પણ ચર્ચા કરીશું. કાર્યક્રમને ચોક્કસથી આગળ વધારીશું, પરંતુ એ પહેલાં એક ઈશ્વર સ્તુતિ લઈએ, કાર્યક્રમને પછી આગળ વધારીએ. અખંડ મંડલાકારમ વ્યાપ્તમ યેન ચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ગુરુરાદિ અનાદિશ્ચ ગુરુઃ પરમ દેવતમ ગુરોઃ પરતરમ નાસ્તિ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. મન્નાથઃ શ્રી જગન્નાથઃ મદ્ગુરુ શ્રી જગદ્ગુરુ મદાત્મા ચ ભૂતાત્મા ચ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. દર્શક મિત્રો, ગઈકાલનો દિવસ એટલે કે 24મી માર્ચ સમગ્ર વિશ્વની અંદર આ દિવસને વર્લ્ડ ટ્યુબરક્યુલોસિસ ડેના નામથી ઉજવવામાં આવ્યો. WHO એટલે કે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન અને ખાસ કરીને ભારત સરકાર બંને એ બાબતે એક કોમન કન્સેન્સસ જણાવે છે કે હજુ પણ જે કંઈ પણ સંક્રામક રોગો વિશ્વમાં ઉપસ્થિત છે એમાં મોસ્ટ ડેડલીએસ્ટ ઇન્ફેક્શિયસ કિલર તરીકે ટ્યુબરક્યુલોસિસને જોવામાં આવે છે. આંકડાકીય માહિતીથી જો સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો એવું કહેવાય કે હર રોજ એક દિવસમાં લગભગ પૂરા વિશ્વમાં 4100 વ્યક્તિઓનું મૃત્યુ માત્ર ટ્યુબરક્યુલોસિસના કારણે થાય છે. એક દિવસમાં 28,000 કરતાં વધારે લોકોને માંદગીનો સામનો માત્ર ને માત્ર ટ્યુબરક્યુલોસિસના કારણે કરવો પડ્યો હોય છે. અને આ સત્યતાને, આ હકીકતને ધ્યાનમાં રાખી અને વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન અને સાથે સાથે ભારત સરકાર સમાજમાં એક જાગૃતિ આવે એટલા માટે દર વર્ષે 24મી માર્ચના રોજ વર્લ્ડ ટ્યુબરક્યુલોસિસ ડે તરીકે ઉજવતા હોય છે. ગઈકાલે પણ આ પ્રકારની એક ઉજવણી થઈ છે. વાત કરીએ મિત્રો, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ટ્યુબરક્યુલોસિસની એક સચોટ અને ઉત્તમ સારવાર અવેલેબલ છે. એ સારવારના કારણે વર્ષ 2000થી લઈ અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 6.5 કરોડ વ્યક્તિઓને એક ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત સ્વાસ્થ્ય, આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ અથવા તો કહીએ કે વિશ્વની અંદર લોકોને એનાથી એક લોન્જેવિટી મળી છે. પરંતુ છેલ્લા 10 વર્ષમાં, વર્ષ 2020 જેને આપણે કોરોના વર્ષ તરીકે ઓળખીએ છીએ, એની અંદર સૌ પ્રથમ વખત એવું થયું છે કે ટ્યુબરક્યુલોસિસના કારણે થનારા મૃત્યુનું પ્રમાણ છેલ્લા 1 વર્ષથી વધ્યું છે. કારણ કોવિડ-19 ઇન્ફેક્શન્સ. આપ જાણીએ છીએ કે રેસ્પિરેટરી ટ્રેક્ટ અને ફેફસાને લગતી તકલીફો કોરોનાની અંદર થતી હોય છે, અને ટ્યુબરક્યુલોસિસ એક કોમોર્બિડ ફેક્ટર પણ હતું, જેના કારણે વર્ષ 2020ની અંદર આ જે મૃત્યુનો દર છે એ વધ્યો છે. એને ધ્યાનમાં લઈને
એક ઉમદા થીમ સાથે વર્ષ 2022ની અંદર ટુ જસ્ટ મેક ધ એન્ડ ઓફ ટ્યુબરક્યુલોસિસ ઇન્ફેક્શન, ટ્યુબરક્યુલોસિસના સંક્રમણને નાથવા માટે, એને બંધ કરવા માટે સમગ્ર વિશ્વમાં આ એક કાર્યક્રમની ઉજવણી થઈ. આયુષ વિભાગ પણ આ કાર્યક્રમની ઉજવણી કરવામાં ખભેથી ખભો મિલાવીને અગ્રેસર હતું. આપ જાણો છો કે આયુષનો જે એક એડોન પ્રોટોકોલ, જેને ઇન્ટિગ્રેટિવ એપ્રોચ સાથે મોડર્ન મેડિકલની ટ્રીટમેન્ટ સાથે એડોન પ્રોટોકોલ સ્વરૂપે આપવામાં આવ્યો, ખૂબ સુંદર પરિણામો પણ મળ્યા. આયુષની જે ગાઈડલાઇન છે એની અંદર યોગ, બ્રિધિંગ એક્સરસાઇઝીસ, પ્રાણાયામ એ પણ એક સુંદર ફાયદાકારક વસ્તુ પુરવાર થઈ ચૂકી છે. તો આ પ્રકારની જે એક્સરસાઇઝીસ છે ટ્યુબરક્યુલોસિસની અંદર પણ ફાયદો ચોક્કસથી કરી શકે. સાથે સાથે દર્શક મિત્રો, એક ભારતના જાગૃત નાગરિક તરીકે જો આપને અથવા તો આપની આજુબાજુના કોઈ પણ લોકોને 2 મહિના અથવા તેનાથી વધુ સમયથી ખાંસી રહેતી હોય, ઝીણો ઝીણો તાવ રહેતો હોય, વજન ઘટતું જતું હોય, તો ચોક્કસથી આવા લોકોને નજીકની હોસ્પિટલનો સંબંધ કરાવીએ. ત્યાં ફ્રી ઓફ કોસ્ટ RNTCP રિવાઇઝડ નેશનલ ટ્યુબરક્યુલોસિસ પ્રોગ્રામ અંતર્ગત ફ્રી સ્ક્રીનિંગ અને એની ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ છે. અને સરકારશ્રીની જે એક ટ્યુબરક્યુલોસિસ નિર્મૂલનની ચળવળ છે એમાં આપણે સૌ સહભાગી થઈએ. દર્શક મિત્રો, આ સાથે સાથે આપણે આજના મુખ્ય કાર્યક્રમ પર આવીએ. આજનો જે વિષય છે મૂત્રમાર્ગના રોગો અને તેની આયુર્વેદીય સારવાર. આ વિષયમાં મૂત્રમાર્ગના રોગો કયા કયા છે, એ રોગોના લક્ષણો કેવા કેવા હોય છે, વર્તમાનમાં એ પ્રકારની કઈ પ્રકારની ટ્રીટમેન્ટ શક્ય બને છે, અને આયુર્વેદીય સારવાર કઈ રીતે વધારે સારી રીતે રોગીઓની સેવા કરવા માટે પુરવાર થઈ શકે એમ છે, આ વિષયની ચર્ચા કરવા માટે આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે वैद्य नारायण साहने साहब. सर, आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है. દર્શક મિત્રો, નારાયણ સાહેબ જે છે એ આયુર્વેદની અંદર MS એટલે કે માસ્ટર ઓફ સર્જરીની ડિગ્રી ધરાવે છે. વર્ષોથી સર્જરી એમના દિલથી નજીકનો વિષય છે અને અધ્યયન અધ્યાપનના કાર્ય સાથે પણ જોડાયેલા છે. સાથે સાથે આયુર્વેદિક યુરોલોજિસ્ટ, એમ કહીએ કે વિશ્વનું સૌ પ્રથમ આયુર્વેદિક યુરોલોજી સેન્ટર બ્રહ્મા આયુર્વેદિક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી આયુર્વેદ હોસ્પિટલની અંદર એ પોતે ચલાવે છે. તો સર, હું આપને વિનંતી કરીશ કે યુરોલોજી, એના વિવિધ રોગો અને આયુર્વેદીય સારવાર, આ વિષય પર આજનો કાર્યક્રમ આગળ વધારીએ. જી સર. જી, प्रणाम प्रणाम दर्शक मित्रों, અને थैंक यू सर, निर्मल सर. आज का जो विषय है वो है आयुर्वेदिक यूरोलॉजी. तो उस विषय पर हम सविस्तर चर्चा करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं हम. तो सर्वप्रथम आयुर्वेद के आदि देव भगवान श्री धन्वंतरी को प्रणाम करते हुए हम विषय पर आते हैं. મૂત્રમાર્ગના રોગો અને એની આયુર્વેદિક સારવાર. દર્શક મિત્રો, આપનું સ્વાગત છે વિશ્વનું સર્વપ્રથમ અને એકમાત્ર આયુર્વેદિક યુરોલોજી કેન્દ્ર બ્રહ્મા આયુર્વેદમાં. સૌથી પહેલાં આપણે આ જે મૂત્રમાર્ગ છે એની રચના જાણવી જોઈએ. तो एमा शू है कि बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा इस स्लाइड में कि वहाँ पे 2 किडनीज़ होते हैं. किडनीज़ में से यूरिन को कैरी करने के लिए 2 यूरेटर्स होते हैं. किडनीज़ में मूत्र का निर्माण होता है, फिल्टर होता है ब्लड, और मूत्र को अलग किया जाएगा और वो मूत्र यूरेटर में से ब्लैडर में आता है. और ब्लैडर में जब आएगा तो वहाँ से उसके नीचे का जो मार्ग है उसको यूरिथ्रा कहते हैं. इस तरह से ये पूरा मूत्र मार्ग बनता है और वहाँ से वो मूत्र शरीर का एक वेस्ट है तो उसको निष्कासित किया जाएगा. वैसे हमारा विशेष रूप से जो काम है वो है अधोमूत्र मार्ग पर. तो अधोमूत्र मार्ग में खास करके ब्लैडर और ब्लैडर के नीचे का यूरिथ्रा ऐसे आते हैं. तो पुरुषों में और स्त्रियों में ये दोनों अलग अलग है. जिसे यूरिथ्रा कहा जाता है मूत्र मार्ग, तो यूरिथ्रा पुरुषों में लगभग 20 सेंटीमीटर जितना लंबा होता है और स्त्रियों में वो केवल 4 सेंटीमीटर जितना होता है. पुरुषों का यूरिथ्रा 2 पार्ट में होता है जिसे कहते हैं हम एंटीरियर यूरिथ्रा और पोस्टीरियर यूरिथ्रा. तो ये इसकी रचना होती है एक सामान्य रूप से पुरुष और स्त्रियों में. जहाँ तक इसकी क्रिया अर्थात फिजियोलॉजी का सवाल है, आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर तरह से इसका वर्णन दिया है. ये पूरा क्षेत्र है, इसे कहा जाता है अपान वायु का क्षेत्र. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा है अपान वायु. तो जिस तरह से अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में इसका वर्णन है कि अपानो अपानगः श्रोणी बस्ति मेढ्र उरुगोचरः
शुक्रार्धव शक्रुन्मूत्र गर्भ निष्क्रमण क्रिया। इसका अर्थ है कि अपान वायु एक ऐसी ऊर्जा है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये ऊर्जा इन चीज़ों का नियंत्रण करती है जिसमें आता है वीर्य, मासिक धर्म, मल, मूत्र और गर्भ। ये ऊर्जा की विशेषता है कि यही ऊर्जा एक समय तक इन चीज़ों को पकड़ेगी, पकड़ के रखेगी, धारण करेगी, और जैसे ही वो लिमिट पूरा हो जाता है यही ऊर्जा उसको निकालती है। उदाहरण के रूप में जैसे ये 5 चीज़ें बताई है, जैसे उसमें गर्भ उदाहरण लेते हैं हम, तो ये ऊर्जा अपान वायु उस गर्भ को लगभग 9 महीने तक गर्भाशय में धारण करके रखती है, और जैसे ही वो कालावधि पूरा होता है, 9 महीने पूरे होते हैं, तो वही ऊर्जा लेबर पेन्स की शुरुआत करती है और फिर डिलीवरी होती है। इसी तरह से बाकी सब चीज़ों का भी, जैसे मूत्र के लिए नॉर्मली ऐसा होता है कि जब तक 400 से 500 ml जितना यूरिन अपने ब्लैडर में जमा ना हो तब तक तो हमें पता भी नहीं चलता है, और जब इतना जमा हो जाएगा तब हमें पता चलता है कि हाँ अभी जाना पड़ेगा। तो तब तक ये अपान वायु उस मूत्र को धारण करता है, और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा हमें वो अर्ज आती है, पता चलता है कि अभी जाना पड़ेगा, और हम जाते हैं, और वही ऊर्जा उसको बहुत सहजता से निकाल देती है। इतना सुंदर वर्णन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में आयुर्वेद में इसके बारे में लिखा हुआ है। अब इसे और थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं। जैसे इस स्लाइड में, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ब्लैडर एक ऐसी थैली है, कोथड़ी है, जो एक मांसपेशी से बनी है, जिसको कहा जाता है डेट्रूजर मसल। उसके नीचे, जैसे ब्लैडर के नीचे जहाँ पे यूरेथ्रा शुरू होता है, वहाँ पे एक वॉल्व होता है जिसे कहते हैं स्फिंक्टर। तो नॉर्मली ऐसे होता है कि जैसे ही हमें अर्ज आती है, वेग आता है कि अभी हमें जाना पड़ेगा यूरिन के लिए, तो उस समय जैसे हम वॉशरूम में जाते हैं तो ये जो डेट्रूजर मसल है उसका संकोच होता है, और उसी समय ये जो स्फिंक्टर है जो टाइट था वो रिलैक्स होने लगता है। तो ये जो डेट्रूजर मसल है उसका संकोच और ये वॉल, ये स्फिंक्टर है उसका रिलैक्सेशन, इसे कहा जाता है डेट्रूजर स्फिंक्टर सिनर्जिया। तो ये एक साथ होता है और उसके साथ ही यूरिन की धार शुरू होती है, और यही अपान वायु नियंत्रित करता है। तो ये इसकी फिजियोलॉजी है। अभी अधोमूत्र मार्ग के जो रोग है उसका वैसे बहुत बड़ा वर्णन आयुर्वेद में भी है। उनको शॉर्ट में, मतलब उनका जो अध्याय है या जो टॉपिक है वो है मूत्राघात और मूत्रकुच, ऐसे 2 अलग अलग अध्याय लिखे हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो लिस्ट जो डिसीजेस कॉमनली हम देखते हैं हमारे ओपीडी में या यूरोलॉजी में जो देखे जाते हैं, उनका लिस्ट यहाँ पे दिया है। सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट डिसीज इस एरिया का है वो है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। उसके अलावा प्रोस्टेट की वृद्धि, फिर पोस्ट यूरिथ्रल वॉल खास करके बच्चों में देखा जाता है, ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, वारंवार थतो मूत्रमार्गनो चेप, रिकरेंट यूटीआई, फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यूटीआई, हाइपोटोनिक ब्लैडर, न्यूरोजेनिक ब्लैडर, और फिर लास्ट में है कि पेशाब पर नियंत्रण न रहे वो इनकॉन्टिनेंस। ये एक लिस्ट है, इतने सारे व्याधि इस क्षेत्र में होते हैं। अभी ये जो भी व्याधि होते हैं उनके कुछ सामान्य कारण हैं, तो उन कारणों के बारे में चर्चा करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कारण जो होते हैं वो 2 है। एक है वेग धारण। वेग धारण अर्थात जब भी हमें पेशाब का सेंसेशन होता है वो एक नेचुरल अर्ज है, तो उसे कभी भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि प्रकृति माँ है, ये एक ऐसी माँ है जो बहुत ही अच्छी, साथ साथ उतनी ही कठोर है, तो इनके पास कोई भी गलती की माफ़ी नहीं है। तो अगर नैसर्गिक प्रवृत्ति हुई है कि आपको पता चला है कि अभी मूत्र का वेग आया है तो मूत्र का विसर्जन करना चाहिए, उसे कभी रोकना नहीं चाहिए। तो ये जो वेग धारण है वो सबसे बड़ा कारण है। उसके साथ वेगोदीरण अर्थात वेग नहीं आया फिर भी काफ़ी सारे लोग होते कि घर से बाहर निकलने तो बार बार जाके आएंगे, ज़बरदस्ती जोर लगा के यूरिन पास करके आएंगे। तो ये वेग धारण और वेगोदीरण ये 2 अत्यंत महत्वपूर्ण कारण हैं अधोमूत्र मार्ग के रोगों के। उसके पश्चात अयाट्रोजेनिक अर्थात जैसे कोई कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन किया है यूरेथ्रा में या लोअर यूरिनरी पैसेज में, या फिर कोई सर्जरी है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माना जाता है अधोमूत्र मार्ग के रोगों के लिए। फिर आघात है, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रॉमा, पथरी, खास करके वारंवार होने वाली पथरी है। फिर मूत्र मार्ग का चेप अर्थात यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है वो है असुरक्षित संभोग, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे संक्रमण, इन्फेक्शंस लगने की संभावना होती है। और अंत में है दैवयोगात, इडियोपैथिक अर्थात जहाँ पे निश्चित कारण पता ना चले। अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि लगभग 50% खास करके यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के पेशेंट्स अयाट्रोजेनिक होते हैं, अर्थात
कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ है लोअर यूरिनरी ट्रैक पर या यूरिथ्रा पे, या फिर कोई सर्जरी हुई है। ये इतना महत्वपूर्ण है। अर्थात एक नज़र से देखें तो ये एक वास्तविकता है, बहुत ही गंभीर वास्तविकता है कि लगभग यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के 50% पेशेंट्स हॉस्पिटल में बनाए जाते हैं दुर्भाग्यवश। ये अंग ही ऐसा है। अच्छा, आगे चलते हैं लक्षणों पे। तो अधोमूत्र मार्ग के जो सामान्य लक्षण हैं उनको शॉर्ट में लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहा जाता है, LUTS। उसमें उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे पहला प्रकार है स्टोरेज LUTS। स्टोरेज, जब ब्लैडर में यूरिन भरा जा रहा है उस समय जो लक्षण दिखते हैं उन्हें कहा जाता है स्टोरेज LUTS। तो उसमें सबसे पहले आता है वारंवारिता, अर्थात फ्रीक्वेंसी, मतलब उस पेशेंट को बार बार जाना पड़ता है। फिर है अर्जेंसी, पेशेंट जैसे ही उसको लगता है कि अभी मुझे यूरिन जाना पड़ेगा, जब तक वो बाथरूम तक पहुंचे तब तक उसे ऐसा लगता है कि मेरा लीक हो जाएगा, दैट अर्जेंसी। फिर रात्रे वारंवार जाऊँ, रात को बार बार उठ के जाना पड़ता है, इसको नॉक्चुरल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। फिर पेशाब पर नियंत्रण न रहे, वो खास करके अलग अलग प्रकार होते हैं इसके। जैसे अर्ज, जैसे ही वेग आता है पता चलता है कि अभी पेशाब जाना पड़ेगा, तो जब तक बाथरूम तक पहुंचते हैं उसके पहले ही लीक हो जाता है। कुछ बूंदे लीक होती, कभी अधिक भी लीक होता है। दूसरा होता है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसका अर्थ है कि छींकने पर, खांसने पर पेशाब की कुछ बूंदे लीक हो जाए, या फिर कभी कभी काफ़ी सारा लीक हो जाए। और कभी कभी जो लिखा है रात्रे, नॉक्चुरल इनकॉन्टिनेंस, अर्थात रात को जब सोते हैं तो नींद में पेशाब निकल जाए। और सबसे बड़ा इसके बाद का जो होता है वो होता है कि कभी भी निकल जाए, पूरी तरह से नियंत्रण चला जाए। इसके पश्चात है पेडुमा दुखाओ, पेट के निचले हिस्से में दर्द का रहना। यह है स्टोरेज LUTS। अगले होते हैं वॉइडिंग LUTS। वॉइडिंग अर्थात जब वो इंसान पेशाब कर रहा है उस समय जो लक्षण उसे प्रतीत होते हैं उन्हें कहा जाता है वॉइडिंग लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स और LUTS। उसमें सबसे पहला जो आयुर्वेद में हज़ारों साल पहले लिख के रखा है वो है कृते अपि अकृत संज्ञता। इसका अर्थ है कि एक बार पेशाब करके आते हैं फिर भी ऐसे लगता है कि किया ही नहीं है, किया है फिर भी नहीं किया है, ऐसा एहसास होना, उसे कहा जाता है कृते अपि अकृत संज्ञता। फिर पेशाब लगभग बंद हो जाना, पेशाब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ओछो उतरवो, बहुत छोटा छोटा उतरता है। बेधार के फुवारा जेवो उतरवो। પછી પેશાબમાં લોહી આવવું, પેશાબમાં બળતરા અને દુખાવો થવો, પેશાબમાં જોર કરવું પડવું, પેશાબની ધાર તરત જ शुरू न थवी, अर्थात पेशाब करने जाते हैं तो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, तुरंत धार शुरू नहीं होती, वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा काफ़ी समय तक। पातળી धार अने टिपे टिपे थવું, पेशाब की एकदम पतली सी धार आती है और बूंद बूंद पैर के पास पड़ता है। अने पेशाब अटकी अटकी नहीं थવું, सलंग धार नहीं आती है, रुक रुक के आता है, थोड़ा आएगा रुकेगा, आएगा रुकेगा, इसे इंटरमिटेंसी कहा जाता है। तो ये है सभी वॉइडिंग LUTS। फिर इसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा LUTS होते हैं जिनको कहा जाता है वधाराना LUTS, एडिशनल LUTS। इसमें है जैसे हीमोस्पर्मिया, अर्थात वीर्य के साथ ब्लड आना, खून आना, वीर्य में लोही। फिर रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, इसमें जब भी हम शारीरिक संबंध बनाते हैं उस समय जो वीर्य बाहर निकलना चाहिए उसके बदले वो वीर्य बाहर निकले उसके बदले ब्लैडर की ओर चला जाता है, इसे कहा जाता है रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। और ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट कारण बन जाता है। फिर नेक्स्ट है मूत्रमार्गमांथी स्राव निकळवो, यूरिथ्रल डिस्चार्ज अलग अलग प्रकार के। फिर वीर्यनो जोर ओछो थवो, वीर्य जिस फोर्स से निकलना चाहिए उस फोर्स से नहीं निकलता है। वृषण कोश में दुखावो, वेदनादायी जातीय प्रवृत्ति, ये अत्यंत पीड़ादायी होता है लोगों के लिए। अने ठंडी लागीने ताव, फीवर विथ चिल्स एंड राइगर्स, ये सब एडिशनल या वधाराना LUTS। अभी ये व्याधियों के बारे में हमने देखा। अभी इन व्याधियों की आयुर्वेद में चिकित्सा जो होती है, आयुर्वेदिक यूरोलॉजिकल चिकित्सा, तो उसके कुछ विशेष है। जैसे सबसे पहले आता है उत्तर बस्ती, फिर बस्ती शोधन, ब्लैडर वॉश, फिर पंचकर्म और उसके साथ बस्ती। बाकी पंचकर्म के बारे में अब तक भी काफ़ी सारी चर्चा हुई है इस प्लेटफॉर्म पे। फिर योग, प्राणायाम और कुछ औषधियाँ। तो अभी हम एक एक करके देखते कि ये क्या चीज़ें हैं, किस तरह से होती है। तो जैसे उत्तर बस्ती, ये एक अत्यंत विशिष्ट आयुर्वेदिक यूरोलॉजिकल चिकित्सा है। आ एक वाड़काप वगरनी चिकित्सा है, आ वेदना रहित है,
એનેસ્થેશિયા વગર છે યુરિથ્રામાં કેથેટર પણ નાખવાની જરૂર નથી અને આ એક डे केयर ट्रीटमेंट છે અને अत्यंत प्रभावी चिकित्सा છે। इन शॉर्ट ये सब ऐसा है कि ये जो भी चिकित्सा करते हैं इसमें किसी प्रकार की सर्जरी नहीं है, वेदना रहित है, कोई एनेस्थेशिया की आवश्यकता नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिकित्सा करते ही तुरंत वो जो उत्तर बस्ती का सेटिंग होता है उसके बाद तुरंत एक मजदूर भी मजदूरी कर सकता है, तो कोई आराम करने की आवश्यकता नहीं है। और भले इसका वर्णन हज़ारों साल पहले हमारी जो आदरणीय सुश्रुत संहिता है उसमें लिखित है, पर आज की तारीख में भी वो उतनी ही प्रभावशाली चिकित्सा है। वो किस तरह से आगे के स्लाइड्स में हम निश्चित रूप से देखेंगे। जैसे उत्तर बस्ती का जो वीडियो है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटा सा एक नोज़ल होता है जिसे फॉलिज अडाप्टर कहते हैं, बस उतना ही मूत्र मार्ग में हम इंसर्ट करते हैं। और एक आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, जनरली एक ऑयल बेस्ड मेडिसिन है, तेल होता है आयुर्वेदिक तेल, तो उस मेडिसिन को बहुत धीरे से ब्लैडर में पहुंचाया जाता है। ये औषधि जो है वो ब्लैडर में जाके ब्लैडर में रह के काम करती है, तो हमें बहुत ही आराम से प्रेम से इसे ब्लैडर में पहुंचाना है। ये औषधि अलग अलग प्रकार की होती है, अलग अलग उद्देश्य से उसका उपयोग किया जाता है। बस इतना ही होता है कि जब अंदर इसका प्रवेश करा रहे हैं, डाल रहे हैं, तो बहुत ही आराम से बहुत ही प्रेम से करना है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि यूरिथ्रा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का। इसमें जनरली कोई दर्द नहीं होता है, कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और हमने हमारे सेटअप में अब तक 8 साल के बच्चे से लेकर लगभग 90 साल के पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है। और फॉर्चुनेटली हम कह सकते हैं कि आज तक कभी किसी को इसको लेकर कोई समस्या नहीं हुई है, और ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हमने आज तक देखा है। इसके साथ कोई सच कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन भी जुड़ा हो हमने नहीं देखा है। बस करते हुए सावधानी बहुत आवश्यक होती है कि उसको बहुत प्रेम से अंदर डालना है। यहाँ तक कि ये सब प्रोसीजर जो होता है, जिसको हम कहते हैं हमारी भाषा में कि असेप्टिक प्रिकॉशंस, पूरी सावधानी, इन्फेक्शन न हो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। ये सब संभालेंगे तो इसमें कोई जनरली समस्या नहीं होती है। तो हमने देखा ये प्रोसीजर उत्तर बस्ती। आगे बढ़ते हम। अभी इस क्षेत्र का सबसे जो प्रोमिनेंट डिसीज़ है यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर, उसकी चर्चा करेंगे। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर एक ऐसा डिसीज़ है जिसमें ये जो यूरिथ्रा है, मूत्र मार्ग है, उसमें कहीं पे संकोच आ जाता है। जैसे ये स्लाइड में आप निश्चित क्लियरली देख सकते हैं, खास करके एक्सरे में दिखाया है। ये ट्यूब में 2 जगह पे आपको एक ब्लॉकेज दिखेगा, इसी को ही यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर कहते हैं। दिस इज एबनॉर्मल कॉन्स्ट्रिक्चर। आगे बढ़ते हैं कि यूरिथ्रा, ये डिसीज़ को समझने के पहले हमें ये यूरिथ्रा, ये जो नली है उसके बारे में समझना पड़ेगा कि यूरिथ्रा एक ऐसी नली है जिसको हम कहते हैं कोलैप्सिबल पाइप। ये एक ऐसी पाइप है जो 24 घंटे बंद रहती है। जब भी हम यूरिन करने जाएंगे उस समय वो खुल जाएगी, जैसे यूरिन निकल जाएगा फिर से बंद हो जाएगी। जो अपने आप बंद होती है इसे कहा जाता है कोलैप्सिबल पाइप। तो कोलैप्सिबल पाइप होने के नाते उसके विशेष 2 गुण होते हैं। एक होता है इलास्टिसिटी, जिसके सहारे ये पाइप खुल सकती है और बंद हो सकती है, और दूसरा होता है कैलिबर। कैलिबर का अर्थ होता है जो अधिक से अधिक सीमा तक वो खुल सकती है, उसे कहा जाता है उस कोलैप्सिबल पाइप का कैलिबर। तो ये कैलिबर और इलास्टिसिटी यूरिथ्रा की अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है उसका नॉर्मल कामकाज चलाने के लिए। जहाँ तक इसकी पैथोलॉजी या संप्राप्ति रोग प्रक्रिया का सवाल है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, सरल करने का प्रयास यहाँ पे हमने किया है। तो पैथोलॉजी की शुरुआत हमेशा जख्म के साथ होती है। जख्म के बगैर कभी भी यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर हो ही नहीं सकता। शुरुआत हमेशा जख्म के साथ होती है। तो जख्म की विशेषता क्या होती है? अपने शरीर पे कहीं पे भी जब जख्म होता है तो धीरे धीरे वो जख्म ठीक हो जाएगा। जब ठीक हो जाता है तो एक निशान छोड़ जाता है, और अगर आपने कभी ठीक से देखा हो तो छोड़ा हुआ जो निशान होता है जख्म की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। इसे मेडिकल की भाषा में कहते हैं सिकाट्राइजेशन ऑफ द वुंड और सिंपली वुंड कॉन्ट्रैक्शन। तो कोई भी जख्म जब ठीक होता है तो उसका संकोच होना ही एक कुदरती प्रक्रिया, उसके बगैर कभी ठीक नहीं हो सकता। तो स्वाभाविक है कि यूरिथ्रा तो बहुत छोटी सी पाइप है, उसके अंदर जब जख्म हो जाए तो वो जख्म भी तो धीरे धीरे सिकुड़ना है, तो सिकुड़ते सिकुड़ते वो पूरे पाइप को भी सिकुड़ने लगता है, और इस तरह से वो पाइप में संकोच होने लगता है। ये पहला पार्ट है पैथोलॉजी या संप्राप्ति या रोग प्रक्रिया का। अब दूसरा पार्ट, आपने देखा होगा कि अपने शरीर पे कहीं पे भी जख्म हो जाए, कोई भी हिस्से पे, भले ही गहरा जख्म क्यों ना हो, जब जख्म भरता है तो कैसे भरता है? वो जख्म नीचे से भरते हुए आएगा, भरते भरते जब उसकी नॉर्मल सतह तक आ जाता है तो वहाँ आके जख्म भरने की प्रक्रिया रुक जाती है।
मेडिकल की भाषा में ये जख्म भरने की प्रक्रिया को कहा जाता है ग्रैन्युलेशन। अब ये कुदरती प्रक्रिया है। अब यही जख्म जब यूरिथ्रा में होता है तो यूरिथ्रा एक ऐसी पाइप है जिसमें से दिन में कई बार पेशाब बहता है। पेशाब मूलतः एसिडिक है, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नमक होते हैं, सॉल्टी है, एसिडिक है। तो ये सॉल्टी एसिडिक यूरिन क्या करेगा, हर बार वो जख्म को छू के जाएगा, अर्थात छेड़ के जाएगा। तो ये जख्म भरने की प्रक्रिया जैसी होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाती है, तो डिस्टर्ब हो रही है। अभी फिर से जख्म भरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब प्रकृति को ये पता चलता है कि यहाँ का जख्म ठीक से नहीं भर पा रहा है तो प्रकृति तो उसकी पूरी शक्ति लगाएगी, उसको तो ठीक करना ही है किसी भी कीमत पे। और उस चक्कर में ये जो ग्रैन्युलेशन है उसका रेट नॉर्मल से काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो पहले जो बताया कि नॉर्मली ग्रैन्युलेशन जैसे ही अपने नॉर्मल लेवल पे पहुंचता है तो वहाँ आके वो प्रक्रिया रुक जाती है, जबकि यूरिथ्रा में वो प्रक्रिया रुक नहीं जाएगी, वो और आगे बढ़ेगा। तो उसके परिणाम क्या होगा कि पाइप जो ऑलरेडी सिकुड़ रही है पाइप इस तरह से, और उसके अंदर नया कुछ बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे इस तरह से, तो वो पाइप धीरे धीरे अंदर से उसका जो ल्यूमेन है, उसकी जो अंदर की जगह है, वो धीरे धीरे और छोटी होती जाती है। ये जो अंदर बढ़ा हुआ जो एक्स्ट्रा है उसे कहा जाता है हाइपर या ओवर ग्रैन्युलेशन। शुरुआत में ये जो पार्ट है ये काफ़ी नरम होता है, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा धीरे धीरे इसका परिवर्तन होता है फाइब्रोसिस में, जो कि रिजिड है, कड़क है। जैसे इन पिक्चर में आप देख रहे हैं अलग अलग लेवल पे अलग अलग नैरोइंग दिख रहा है आपको, ग्रोथ दिख रही है अंदर यूरिथ्रा के ल्यूमेन में, और इस तरह से वो बढ़ता जाता है, फिर कड़क हो जाएगा। तो बहुत ही स्पष्ट है कि एक बार उतना हिस्सा कड़क हो गया, स्पॉन्जियोफाइब्रोसिस हो गया, जिसे हम यूरिथ्रल स्ट्रक्चर का स्कार टिश्यू कहते हैं। तो एक बार रिजिड हो गया, कड़क हो गया, तो यूरिथ्रा के उतने हिस्से में उसकी इलास्टिसिटी भी चली गई और साथ साथ उसका कैलिबर भी चला गया, जो अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है उसका नॉर्मल काम का चलाने के लिए। तो ये समस्या यहाँ पे होती है। तो ये है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर डिसीज़। अभी इसकी जो चिकित्सा है, जहाँ तक चिकित्सा का सवाल है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो है उसकी औषधीय चिकित्सा केवल लाक्षणिक होती है। चलो जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसके लिए जो भी दवाई देनी है दे दो, तो लाक्षणिक चिकित्सा, वो कुछ दिन के लिए अच्छा लगेगा, फिर से वो आएगा। फिर और कुछ होता है जैसे डायवर्जन, मार्गांतर, जिसमें पेट में, बैक प्लीज, तो पेट में छेद करके ऊपर से ब्लैडर में से एक कैथेटर डाला जाता है ब्लैडर में यूरिन को निकालने के लिए, या फिर नीचे से अंडकोश के पीछे से एक रास्ता बनाया जाता है यूरिन को निकालने के लिए, जब आगे का मार्ग बहुत ही बुरी तरह से संकुचित है, तो इसे कहा जाता है डाइवर्जन। ये टेम्पररी है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन होता है CIC, क्लीन इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन, या सिंपली सेल्फ डायलिटेशन। खास करके स्ट्रक्चर के काफ़ी सारे पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि आप खुद अपने हाथों से कैथेटर अंदर डालिए, या तो दिन में 1 बार 2 बार, कभी कभी 3-4 बार डालने वाले पेशेंट्स भी हमने देखे हैं। फिर रोज़ डालते हैं, ऑल्टरनेट डे डालते हैं, इस तरह से, ताकि वो रास्ता खुला रहे। पर दुर्भाग्यवश ये जो भी चिकित्सा है, ये जो ऑप्शन है, जो विकल्प है सेल्फ डायलिटेशन, जिस तरह से एक डॉक्टर हॉस्पिटल में कर सकता है उस तरह से एक सामान्य इंसान घर पे उतनी सावधानी से नहीं कर पाता है। तो इसके संबंधित कुछ कॉम्प्लिकेशंस जुड़े होते हैं, और वो कुछ इस तरह से है, जैसे वारंवार थतो UTI, बार बार इन्फेक्शन लग सकता है। फिर एक ब्लाइंड प्रोसीजर है तो नए ईजा हो सकती है, इंजुरी हो सकती है। एक स्ट्रक्चर के अनेक स्ट्रक्चर बनते हुए हमने देखे, जो लोग लंबे समय तक सेल्फ डायलिटेशन या सेल्फ कैथेटराइजेशन करते हैं। और सबसे ख़राब जो देखा है वो है फॉल्स पैसेज। जैसे इस एक्सरे में आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल ट्यूब है उसके अलावा एक कहीं पे अलग रास्ता बन जाता है, घुस जाता है वो कैथेटर। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें देखे जाते हैं। अगला विकल्प बचता है केवल सर्जिकल या शस्त्रकर्म चिकित्सा। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है यूरिथ्रल डायलिटेशन। यूरिथ्रल डायलिटेशन, इसमें जैसे एनेस्थेसिया देके स्टील के जो रॉड्स होते हैं अलग अलग साइज़ के, छोटे से शुरुआत करके फिर बड़ा इस तरह से डाले जाते हैं, या टेफ्लॉन डायलेटर भी आजकल यूज़ करते हैं, या फिर बलून डायलेटर। तो ये इसमें क्या किया जाता है कि अंडर एनेस्थेसिया पेशेंट को बेहोश करके वो रास्ता खोलने का प्रयास करते हैं। अभी ये प्रेम से तो नहीं खुलेगा, तो जब खोलने का प्रयास करते तो अंदर फिर से तोड़फोड़ होती है, नया जख्म होता है। हमने पहले ही देखा है कि इसकी जो चिकित्सा, इसकी जो रोग प्रक्रिया जो है या संप्राप्ति या पैथोलॉजी जो है, इसकी शुरुआत होती है जख्म से। तो जब उसे खोलने का प्रयास करते तो फिर से नया जख्म होता है। जैसे ही नया जख्म होगा धीरे धीरे फिर से वही प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर फिर से बनने लगता है, फिर से वही फाइब्रोसिस बनेगा, फिर से इसे संकोच आएगा, और इसलिए जनरली 1 साल में ये फिर से आता है। और इसीलिए ये जो बलून डायलिटेशन जब किया जाता है तो साल में 1 बार तो करना ही पड़ता है। इसीलिए पेशेंट को याद रहे इसके लिए जनरली वो डायलिटेशन का प्रोसीजर
उसके बर्थडे के आसपास रखा जाता है, इसलिए उसका नाम, दूसरा नाम है भी कि बर्थडे डायलिटेशंस। तो पेशेंट को याद रहे कि अभी मेरा बर्थडे है, चलो मुझे जाना है डायलिटेशन के लिए, ये इसकी विशेषता है। अगला जो विकल्प है वो होता है दूरबीन द्वारा यूरेथ्रोटोमी, विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी या डायरेक्ट विजुअल इंटरनल यूरेथ्रोटोमी। इसमें दूरबीन डाला जाता है अंदर, जहाँ पे संकोच दिख रहा है, जैसे आप इस स्लाइड में देख पाते हैं कि जहाँ पे संकोच दिखता है वहाँ पे या तो यूरेथ्रोटोम मतलब एक सिंपल ब्लेड होता है उससे, या कोल्ड नाइफ से या लेज़र से कट करके पाइप को खोलने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ कट करते हैं तो फिर से नया जख्म हो गया, नया जख्म हो गया तो फिर से पैथोलॉजी जो रोग प्रक्रिया है वो फिर से शुरू हो जाएगी। और दुर्भाग्यवश ये सर्जरी के बाद भी अधिकांश पेशेंट में 1 साल में फिर से उसका रिकरेंस हो जाता है, मतलब व्याधि फिर से पहले जैसा ही हो जाता है। और इसीलिए अधिकांश यूरोलॉजिस्ट ये सर्जरी करने के बाद उस पेशेंट को वो सेल्फ डायलिटेशन वाला ऑप्शन देते हैं कि आप खुद कैथेटर करते रहो ताकि ये फिर से बंद ना हो। पर दुर्भाग्यवश उसमें अलग से इन्फेक्शन होता है, नए इंजुरीज होते हैं, तो उसके कारण भी मतलब वो असल में ऐसा होता है कि सेल्फ डायलिटेशन जो करना होता है शुरुआत में रोज़ करना होता है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी होती है, रोज़ से जैसे 1 दिन छोड़ के हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार, 15 दिन में 1 बार। पर जैसे ही पेशेंट कम करने लगता है फिर वो कैथेटर आसानी से नहीं जाएगा, कठिनाई होगी, फिर साइज छोटा करना पड़ेगा कैथेटर का, इस तरह से होता है। फिर करते 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 फिर से सिकुड़ ही जाता है, फिर दूसरी सर्जरी करनी पड़ती है। इस तरह से 1, 2, 3 सर्जरीज होने के बाद यूरोलॉजिस्ट फिर नेक्स्ट विकल्प बताते हैं। अगला विकल्प वो है यूरेथ्रोप्लास्टी का। असल में यूरोलॉजी में ऐसे माना जाता है कि ये अंतिम विकल्प है यूरेथ्रोप्लास्टी, इसके आगे कुछ नहीं। अभी इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई छोटा स्ट्रक्चर हो, छोटा सा स्ट्रक्चर है तो वो एक ओपन सर्जरी है, बड़ा ऑपरेशन है ये। वो ट्यूब को ओपन करके जितना खराब हिस्सा है उतना कट करके ट्यूब का निकाल देते हैं और ये 2 पाइप है उसको आपस में जोड़ा जाता है, उसको एनास्टोमोसिस यूरेथ्रोप्लास्टी कहा जाता है। पर यह संभव होता है बस छोटे स्ट्रक्चर के लिए। अगर स्ट्रक्चर लंबा है, बड़ा है तो यह संभव है। तो उसके लिए जो ऑपरेशन जनरली किया जाता है उसे कहा जाता है बकल म्यूकोजल ग्राफ्ट रिकंस्ट्रक्टिव यूरेथ्रोप्लास्टी। ये एक प्लास्टिक सर्जरी है, इसमें वही करते हैं, ओपन सर्जरी है, जितना यूरेथ्रा का वो पाइप खराब हो चुका है उतना पाइप कट करके निकाल दिया जाएगा और गाल के अंदर की स्किन लेके उसको नई तरह से बनाने का प्रयास किया जाता है। मित्रों, बहुत ही स्पष्ट है कि जिस तरह से ईश्वर ने दिया है कोई अंग, उस तरह से भले ही कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कोई भी डॉक्टर उसे नहीं बना सकता। और दुर्भाग्यवश ये भी एक सर्जरी है, इसमें भी तो काफ़ी बड़ा जख्म होता है और ये करने के पश्चात भी कुछ समय के बाद अधिकांश पेशेंट को इसका रिकरेंस हो ही जाता है, मतलब स्ट्रक्चर फिर से वापस आ ही जाता है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस व्याधि की। तो अब तक हमने जो देखा इस व्याधि के बारे में बहुत ही स्पष्ट है कि परंपरागत चिकित्सा जितने भी है उसके परिणाम कुछ आशास्पद नहीं है, कोई प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट आज तक इसमें नहीं है। भले ही आधुनिक यूरोलॉजी में इतना सारा कुछ मतलब रिसर्च होता है, सब कुछ होता है, पर फिर भी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की चिकित्सा एक चैलेंज है, एक पड़कार है। और ये माना जाता है यूरोलॉजी में इनफैक्ट कि वंस इज अ स्ट्रक्चर ऑलवेज इज अ स्ट्रक्चर। किसी इंसान को एक बार स्ट्रक्चर हो जाए तो जीवन भर वो उसके साथ रहता है, इस तरह से माना जाता है। अभी हम क्या करते हैं आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में जो पहले देखा हमने कि क्या करते हैं हम, उत्तर बस्ती। तो जो उत्तर बस्ती चिकित्सा है उसके परिणाम किस तरह से है उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे कुछ केसेस के साथ। तो जैसे ये एक लेडी हमारे पास आई थी, वैसे पंजाबी लेडी है बट यूएस सिटीज़न है, सालों से यूएस में रहते हैं। उनकी उम्र 58 साल की, उनको लगभग 12 साल से भी अधिक समय से यूरेथ्रल स्ट्रक्चर का ये रोग था, ये बीमारी थी। हर 6 महीने पे सड़िया डाल के डायलिटेशन करना पड़ता था, नहीं करते थे तो पेशाब लगभग बंद सा हो जाता था। और ऐसे ही एक दिन 15 अक्टूबर 2012 में उनका पेशाब पूरी तरह से रुक गया। जब पूरी तरह से रुक गया तो क्या करेंगे, फिर इमरजेंसी में कैलिफोर्निया में गए, हॉस्पिटल इमरजेंसी में। वहाँ उन्होंने प्रयास किया कि कैथेटर डाले, पर कोई कैथेटर अंदर नहीं जा सका। यहाँ तक कि इन्फेंट फीडिंग ट्यूब, एक बच्चों को फीड कराने के लिए एक बहुत पतला सा ट्यूब आता है, उसका 6 फ्रेंच वाला, वो तक नहीं जा सका अंदर। तो अल्टीमेटली इमरजेंसी में पेशाब तो निकालना था, तो ऊपर से पेट में छेद करके उनको पेशाब निकालना पड़ा, और वो सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन कहते हैं उसे, और वो कैथेटर लगा के रखा। और फिर काफ़ी सारे इन्वेस्टिगेशन करके अल्टीमेटली दिसंबर 2012 में उनको बताया गया कि उनको यूरेथ्रोप्लास्टी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी 12 साल से डायलिटेशन करते आ रहे थे वो।
फिर जब एक्चुअल सर्जरी पोस्ट किया गया 23 जनवरी 2013 कैलिफोर्निया में, जब उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, जब बच्चों वाला दूरबीन 10 नंबर का दूरबीन उन्होंने डालने का प्रयास किया तो वो दूरबीन आधे सेंटीमीटर से अधिक अंदर नहीं जा पाया। फिर उन्होंने गाइड वायर डालने का प्रयास किया। गाइड वायर मतलब बहुत पतला, बॉल पेन के बॉल के जैसा पतला सा तार होता है, वो डालने का प्रयास किया पर वो भी नहीं जा सका। फिर पेट में छेद किया हुआ था तो उधर से दूरबीन डाल के उसमें से गाइड वायर डालने का उन्होंने प्रयास किया पर कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा था। तो उनको ऑपरेशन उसी जगह पे रोकना पड़ा और उन्होंने उस पेशेंट को कहा, नेक्स्ट प्लीज, कि उनको इसी ट्यूब के सहारे पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी अधिकांश लोगों के लिए ऐसा होता है कि एक बार अमेरिका के डॉक्टरों ने बोल दिया कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता, लगता है कि भगवान ने बोल दिया, तो आगे क्या करेंगे। तो फिर हमारा एक वेबसाइट है इसी बीमारी को समर्पित पूरी तरह से, उसका नाम ही है cureurethral-stricture.com। उस पर एक ऑनलाइन कंसल्टेशन फॉर्म है। उन्होंने देखा, उनकी बेटी नर्स है वहाँ पे, उन्होंने सर्च किया, हमारी साइट देखी, उस पर ऑनलाइन कंसल्टेशन फॉर्म भर के भेजा। उनको बहुत कठिन था विश्वास करना कि एक आयुर्वेद डॉक्टर, वो भी भारत से, कहता है कि ये ठीक हो सकता है, कैसे संभव है ये। और हमारी एक पॉलिसी कि जब तक सभी पेशेंट के सभी शंकाओं का पूरी तरह से समाधान ना हो तब तक हम चिकित्सा शुरू नहीं करते हैं। तो इस तरह से अंत में वो आए हमारे पास, हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। नेक्स्ट, जैसे 20 अप्रैल 2013 को हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया, 29 अप्रैल 13 तक उनका हम वो पेट पे लगा हुआ ट्यूब निकाल पाए। नेक्स्ट प्लीज़। तो जिनका एक बूंद भी पेशाब नहीं आ सकता था, उनका केवल 10 दिन में पूरी प्राकृतिक तरह से, अच्छी तरह से यूरिन आने लगा। उसका एक रिपोर्ट किया जाता है जिसको कहा जाता है एरोफ्लोमेट्री। तो एरोफ्लोमेट्री में उनका मैक्सिमम फ्लो रेट 16.8 ml पर सेकेंड आया, जो कम से कम 15 होना चाहिए। एवरेज 12.4 आया, जो कम से कम 10 के आसपास होना चाहिए, और ये भी किसी प्रकार का जोर किए बगैर। तो ये केस एक विशेष रूप से ये दिखाता है कि यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर जैसा डिसीज, जिसके लिए अभी मान्यता है कि ये स्ट्रिक्चर कभी भी सर्जरी के बगैर नहीं खुल सकता, उसको सर्जरी या डायलिटेशन करना पड़ता है, उसके बगैर खुल ही नहीं पाएगा। और यहाँ ये सिद्ध होता है कि नहीं, हम निश्चित रूप से आयुर्वेदिक चिकित्सा उत्तर बस्ती से उसे बिना सर्जरी के खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, वो ट्रीटमेंट पूरा करके अप्रैल मई में 2013 में वापस चले गए यूएस से। फिर वहाँ से नेक्स्ट, वहाँ से जब 3.5 साल के बाद दिसंबर 2017 में वापस आए, तो उस समय भी उनका यूरोफ्लो पूरी तरह से नॉर्मल था। एक ऐसी स्त्री जिनको हर 6 महीने पे सड़िया डाल के खोलना पड़ता था, 3.5 साल के बाद भी उनका फ्लो पूरी तरह से नॉर्मल। और अगले महीने में, अप्रैल महीने में, लगभग 9 साल पूरे होते हैं उनकी चिकित्सा के। जिनको हर 6 महीने पे डायलिटेशन करना पड़ता था, वो आज बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है, ये बताता है, दर्शाता है, आयुर्वेद की क्षमता दर्शाता है, और साथ में ये दर्शाता है कि वो जो बिलीफ है, वो जो मान्यता है यूरोलॉजी में, वंस इज अ स्ट्रिक्चर ऑलवेज इज अ स्ट्रिक्चर। भले ही आधुनिक या फिर एलोपैथी में वो मान्यता वो उनके लिए सही होगी, पर आयुर्वेद में निश्चित रूप से ये सही नहीं है। इसको डिस्प्रूव करते हम। ये संभव है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा से ये व्याधि पूरी तरह से मिटाया जा सकता है। उसके और कुछ उदाहरण हम आगे देखेंगे। जैसे ये एक पेशेंट है, ये भी इसी तरह से आए थे। महाराष्ट्र से एक किसान है, 65 साल की उम्र। जब हमारे पास आए थे तो ट्यूब लगा कर ही आए थे ऊपर से, नीचे से रास्ता पूरी तरह से बंद था, तो ऊपर से पेट में छेद करके सुपरापिव ट्यूब लगा हुआ है। नेक्स्ट, इनका जब एक्सरे किया तो वही पेशाब के रास्ते में रेडियो ओपेक कॉन्ट्रास्ट एक डाई होता है, वो डालते हुए एक्सरे करते हैं। तो जिस तरह से आप देख पाते हैं कि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक था, मतलब एक लेवल से ऊपर जो वाइट दिख रहा है वो ब्लैडर तक जाना चाहिए, तो ब्लैडर तक जा ही नहीं सका, पूरी तरह से ब्लॉक्ड यूरेथ्रा। नेक्स्ट, तो इनका जब हमने ट्रीटमेंट किया यही उत्तर बस्ती से, तो आप देख सकते हैं कि एक्सरे में जो कैन्यूला दिखता है वहाँ से सीधी डाई ऊपर तक जा चुकी है, ब्लैडर तक डाई पहुँच गई, मतलब रास्ता पूरी तरह से खुल गया है। और उनका जो पेट में लगी हुई नली थी वो भी निकाल दी, और बहुत ही प्राकृतिक पद्धति से वो यूरिन करते हैं अभी। एक और एक उदाहरण है, जैसे ये पेशेंट आए थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वैसे चेन्नई के हैं पर रहते हैं यूएस में। तो पहला सर्जरी किया VIO दूरबीन वाला सर्जरी नवंबर 2011 में। एग्जैक्ट 1 साल में 2012 दिसंबर में उनको फिर से तकलीफ हुई, तो फिर से सर्जरी करनी पड़ी। जब दिसंबर 13 में, उसके 1 साल के बाद जब हमारे पास आए तो फ्लो काफ़ी तरह से बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था। नेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जब हमारे पास आए थे 2 दिसंबर 13 को, तो फ्लो बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ था, काफ़ी पतली धार हो चुकी थी उनकी। हमारे ट्रीटमेंट के बाद दिसंबर में उनका फ्लो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो गया, दिसंबर 2013 में। उसके बाद ट्रीटमेंट पूरा करके वो यूएस चले गए।
नेक्स्ट, वहाँ से वापस आए दिसंबर 17 में, मतलब 4 साल के बाद। जिनको हर साल लगभग आप देख रहे थे कि 1 साल में ही फिर से आता था, 4 साल के बाद भी उनका यूरिन का फ्लो पूरी तरह से नॉर्मल है। तो फिर से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो उस मान्यता को रद्द करता है कि वंस इज अ स्ट्रक्चर ऑलवेज इज अ स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में हम इसे निश्चित रूप से ठीक कर सकते हैं। और एक उदाहरण देखेंगे, जैसे खास ये उदाहरण है, कितने सारे सर्जरीज, दूरबीन से लेज़र वाले 3 सर्जरी किए, 4 सर्जरी किए, उसके बाद यूरोथोप्लास्टी किया। यूरोथोप्लास्टी के पश्चात भी दुर्भाग्यवश व्याधि आ गया। इसमें काफ़ी सारे और देख सकते हैं आपकी, फिर से और सर्जरीज किए, लेज़र के सर्जरीज, फिर दूरबीन वाला सर्जरी, फिर डायलिटेशन, और फिर रोज़ खुद कैथेटर करते थे। और इतना करते हुए भी उनका जो यूरिन का फ्लो था, नेक्स्ट प्लीज, बहुत ही पुअर था। यूरिन की जो धार होती है, ये रिपोर्ट है यूरोफ्लोमेट्री का, तो केवल 6 ml पर सेकंड था, कम से कम 15 होना चाहिए, 6 नहीं 15 ml पर सेकंड होना चाहिए। इतना पुअर था रोज़ कैथेटर करते हुए भी। और हमने ट्रीटमेंट किया मई 2016 में, पूरा इम्प्रूव हो गया, और ईश्वर की दया से, आयुर्वेद की क्षमता से वो पेशेंट भी आज अच्छी तरह से जी रहे। और हमारे पास आज तक ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो एक नहीं, केवल एक नहीं तो दो बार यूरिथोप्लास्टी करके आए हुए पेशेंट्स हैं, और वो भी आज अच्छे से जी रहे हैं। ये व्याधि ही ऐसा है, तो इसके बारे में खास करके जिनको ये व्याधि होता है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, वो इतना खराब है कि उसके चलते उनका पूरा जीवन बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होता है। मतलब हम कहते कि देयर इज़ नो पर्सनल लाइफ, नो सेक्सुअल लाइफ, नो फैमिली लाइफ, नो सोशल लाइफ, पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड। कई सारे पेशेंट्स हम देखते हैं कि जो आत्महत्या का प्रयास भी करते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो जैसे आप इस चित्र में देख सकते हैं, खास करके अमेरिकन यूरोलॉजी एसोसिएशन का सिम्टम इंडेक्स स्कोर का क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो जैसे ट्रीटमेंट के पहले जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ थी टेरिबल और अनहैप्पी, बहुत ही त्रस्त थे, ट्रीटमेंट के पश्चात आप देख सकते हैं कि प्लीज और डिलाइटेड, उसके 1 साल के बाद भी प्लीज मोस्टली सेटिस्फाइड, 2 साल के बाद भी प्लीज मोस्टली सेटिस्फाइड। मतलब इस तरह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत सुंदर तरीके से इम्प्रूव होती हुई है, सुधार देख सकते हैं आप उसमें। ऐसा नहीं कि हमारे सभी पेशेंट 100% पेशेंट अच्छे से जी रहे हैं। सभी के मन में प्रश्न होता है कि चलो ठीक है, आपने व्याधि के बारे में इतना सारा बताया कि रिकरेंस तो इतना अधिक है, होता ही है फिर से, तो आप में कभी हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा? हाँ, हमारे कुछ पेशेंट्स में निश्चित रूप से रिलैप्स हुआ है। वो पेशेंट्स निश्चित रूप से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे, जैसे मल्टीपल सर्जरीज। जैसे हमारे प्रैक्टिस में हमने एक पेशेंट देखा है जिनके 40 सर्जरीज हुए हैं, जिनके 40 सर्जरीज, विश्वास नहीं होता है पर वास्तविकता है। तो ऐसे पेशेंट्स भी जिनके मल्टीपल सर्जरीज हुए हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे पेशेंट्स कुछ वापस आए। जैसे यहाँ पे हम अभी लगभग 244 पेशेंट का डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से लगभग 212 पेशेंट्स एक बार की ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। ये 20 दिन का ट्रीटमेंट होता है, तो लगभग 87% पेशेंट्स बहुत अच्छे से जी रहे एक ही बार के ट्रीटमेंट के बाद। 32 पेशेंट, लगभग 13% पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको कुछ समय के बाद फिर से फ्लो कम हुआ है, कुछ लक्षण दिखे हैं, तो उनको वापस बुलाया है। फिर 7 दिन, नेक्स्ट टाइम जो ट्रीटमेंट होता है केवल 7 दिन का होता है, यहाँ कोई सर्जरी नहीं करनी है, 7 दिन का ट्रीटमेंट लेके गए, फिर से वो अच्छे से जी रहे हैं। तो ये भी इसकी एक विशेषता है कि भले 13% पेशेंट को आना पड़ा है पर फिर भी वो अच्छे से जी रहे हैं आज। पर अधिकतम 87% पेशेंट्स तो बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे हैं इस ट्रीटमेंट के बाद। नेक्स्ट, तो जो पेशेंट को फिर से आना पड़ा है, उनकी एक विशेषता थी कि कैसे पेशेंट्स थे जिनको फिर से ये चिकित्सा लेनी पड़ी या कुछ लक्षण दिखाई दिए। तो एक बहुत ही स्पेसिफिक लिस्ट है कि हु अंडरवेंट मल्टीपल सर्जरी, जिनको बहुत सारे सर्जरीज करने पड़े हैं, जो काफ़ी लंबे समय से कैथेटर यूज़ करते थे, एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ है उस पर BXO कहते हैं, वो था उनको। फिर बकल म्यूकोजल ग्राफ्ट यूरोथोप्लास्टी कर चुके हैं, या प्रोस्टेट की सर्जरी करने के बाद जिनको स्ट्रक्चर हुआ है, ऐसे कुछ कंडीशंस है। तो ऐसे सभी पेशेंट्स में हमने 7 दिन का एडिशनल ट्रीटमेंट किया है, तो उसके बाद वो ठीक है। तो ऐसा एक केस आपके सामने खास प्रेजेंट करते हैं जिनमें ये जो सिम्टम्स है उत्तरबस्ती चिकित्सा के बाद भी दिखे। तो जैसे ये पेशेंट है, इनको एक हाइपोस्पेडियस कंडीशन थी जिसमें मूत्र मार्ग का जो ओपनिंग होता है, यूरेथ्रा का ओपनिंग, वो टिप पे, लिंग के टिप पे होने की जगह पीछे, यहाँ कहीं बीच में या पीछे होता है कहीं पे, तो उसको हाइपोस्पेडियस कहते हैं। तो उसकी सर्जरी की 89 में, तो उसी समय उनको स्ट्रक्चर हुआ, उसके लिए सर्जरी की दूरबीन वाली, उसके बाद हर 3 महीने पर डायलिटेशन करना पड़ता था। फिर 98 में फिर से सर्जरी, फिर हर 3 महीने पर डायलिटेशन,
फिर एक दूरबीन वाली सर्जरी, फिर हर 3 महीने पे डायलिटेशन। और 2008 में जब लास्ट दूरबीन वाली सर्जरी की तो उसके पश्चात उनकी स्थिति ऐसी इतनी ख़राब हो गई कि उनको हर 15 से 20 दिन में डायलिटेशन करना पड़ता था। बहुत सारा ब्लीडिंग, पेन, बहुत बुरी स्थिति में थे, बहुत ही कठिन स्थिति थी उनकी। और फिर वो हमारे पास आए, हर 15 दिन में डायलिटेशन करना पड़ता था। जून 2015 में डायलिटेशन करके आए थे, इसलिए फ़्लो अच्छा था, हमने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद अक्टूबर तक उनका फ़्लो बहुत अच्छी तरह से बना रहा, 4 महीने, जिनको हर 15 से 20 दिन में डायलिटेशन करना पड़ता था। उसके बाद दिसंबर में, मतलब 6 महीने के बाद थोड़ा फ़्लो कम होने लगा उनका। फिर से हमने 7 दिन का ट्रीटमेंट किया, दिसंबर 15 में फ़्लो इम्प्रूव हो गया। तो उसके बाद दिसंबर 15 से लेकर दिसंबर 16 तक, मतलब पूरा 1 साल उनका अच्छा चला। दिसंबर 16 में फिर से कम हो गया। दिसंबर 16 में हमने ट्रीटमेंट की तो जनवरी 17 में वो अच्छी तरह से खुल गया सब कुछ। नेक्स्ट, तो दिसंबर 17 तक, मतलब पूरा 1 साल अच्छे से गया, तभी भी फ़्लो अच्छी तरह से चल रहा था उनका। और अभी लेटेस्ट उनका एक हमने यूरोफ्लो कराया था 11 जून 2021 को, तो अभी भी उनका फ़्लो अच्छी तरह से चल रहा है। मतलब जनवरी 2017 से लेकर अब तक उनका जीवन बहुत नॉर्मली चल रहा है। जिनको इतना बुरी तरह से हर 15 से 20 दिन में जिनका जीवन एक नरक हो चुका था, वो भी आज इस चिकित्सा के बाद, भले ही उनको 2-3 बार आना पड़ा है, पर बहुत अच्छे से जी रहे हैं। तो ये विशेषता है इस चिकित्सा की। अभी ये यूरिथ्रल स्ट्रक्चर के अलावा दूसरे एक कुछ 2-3 डिसीज़ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो उसमें एक होता है ब्लैडर नेक ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ये एक ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है जहाँ पे ब्लैडर नेक वाला जो एरिया है वहाँ पे रुकावट होती है। दिस इज़ एक्चुअली अ फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। स्ट्रक्चर में वो रुकावट जो देखी हमने, वहाँ पे फाइब्रोसिस बनता है। इसमें ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये जो हम जो देख रहे थे, नेक्स्ट प्लीज, कि ये जो ब्लैडर, उसके नीचे जो स्फिंक्टर है, जो वाल्व है, तो जो पहले डिस्कस किया था कि ब्लैडर का मसल, मांसपेशी, डेट्रूजर कॉन्ट्रैक्ट होता है, संकोच होता है, और ये स्फिंक्टर को खुलना चाहिए। डेट्रूजर स्फिंक्टर सिनर्जी है, मतलब जैसे ये मांसपेशी का संकोच होगा ब्लैडर के, तो वॉल को खुलना चाहिए है सिनर्जिया। तो यहाँ पे वो ना हो कि क्या होता है, डिससिनर्जिया होता है। अर्थात ब्लैडर के मांसपेशियों का संकोच भले ही हो, पर साथ में ये जो वॉल है ये खुलता नहीं, वो उतना ही टाइट रहता है। इसे कहते हैं डेट्रूजर स्फिंक्टर डिससिनर्जिया। तो ये एक अपान विकृति है, सिग्निफिकेंट अपान विकृति है। इसमें खास करके मुख्य कारण जो होता है वेग धारण। जैसे एक खास उदाहरण आपके लिए यहाँ पे है। एक छोटा सा बच्चा आया था हमारे पास, 9 साल का। उसके हिस्ट्री में एक बहुत ही विशेष चीज़ थी, वो थी वेग धारण। मतलब वो बच्चा ऐसा था कि जब स्कूल में जाता था तो उसको ऐसा लगता था कि वहाँ के वॉशरूम्स गंदे हैं, तो 5, 6, 7, 8 घंटों तक वो यूरिन पकड़े रखता था ज़बरदस्ती। और जिसके चलते उसका ब्लैडर इतना बड़ा हो गया था, मतलब ये इतना टाइट हो गया, क्योंकि जब पेशाब आए, पहले ही बताया कि कभी वेग धारण नहीं करना चाहिए। वो जो प्राकृतिक जो एक अर्ज आता है, हमें वेग आता है, उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। इसने काफ़ी दिनों तक ये किया था, जिसके चलते ये ब्लैडर नेक इतना टाइट हो गया था, तो ब्लैडर में से यूरिन ठीक से निकलता ही नहीं था, मुश्किल से निकलता था, जिसके चलते ब्लैडर फूल फूल के इतना बड़ा हो गया था कि उस बच्चे के नाभि के ऊपर तक ब्लैडर दिखता था। इतना बड़ा ब्लैडर था, 2 इंच ऊपर तक, इतना फूल गया था। उसकी कुछ रिपोर्ट्स भी हम देखते हैं। आगे चलिए प्लीज़। जैसे उसने काफ़ी सारा रिपोर्ट करके आया था, जैसे मैच्योरेटिंग सिस्ट यूरेथ्रोग्राम, मतलब वो नैरोइंग जानने के लिए होता है, सोनोग्राफी किया था, एरोफ्लोमेट्री किया था। नेक्स्ट, तो जैसे एक्सरे में आप देख सकते हैं कि उसका ब्लैडर बहुत बड़ा है। एक छोटे बच्चे का ब्लैडर जनरली 300 से 350 ml का होना चाहिए 9 साल की उम्र में। उसकी जगह पे उसका जो ब्लैडर था, जो सोनोग्राफी का रिपोर्ट है उसके अनुसार, नेक्स्ट प्लीज़, वो था लगभग 1081 ml का, 1081 ml का। इतना बड़ा फूला हुआ ब्लैडर था। नेक्स्ट प्लीज सर। इतना बड़ा फूला हुआ था, और यूरिन करने के बाद लगभग 836 ml जितना यूरिन बाकी रहता था। आप समझ सकते हैं कि एक दूध की बैग 500 ml की, आप सोचिए ऐसी 2 बैग जितना, 1000, 1 लीटर, इतना बड़ा एक छोटे बच्चे का ब्लैडर। और उसकी ये सब स्थिति देख के इसका यूरोफ्लो भी बहुत ही पुअर था, मतलब जिस तरह से यूरिन निकलता था बहुत धीमे धीमे निकलता था। तो ये स्थिति सब देख के उसका इफेक्ट किडनी पर भी आने की संभावना होती है, इसलिए उसे वहाँ के यूरोलॉजिस्ट, फिर पीडियाट्रिक सर्जन ने इमरजेंसी में ऑपरेशन करने का बताया था, सिस्टोस्कोपी, दूरबीन वाली सर्जरी। और उनको एक शंका थी कि एक कंडीशन होता है पोस्ट यूरिथ्रल वॉल, उसको भी फल्गुरेशन, मतलब उसको जलाया जाता है, इमरजेंसी में करने के लिए एडवाइस दिया था। पर किसी के कहने से वो हमारे पास आए और उन्होंने विश्वास किया हम पे। हमने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट जिस तरह से था, तो उसमें एक तो उत्तर बस्ती किया, यूरिथ्रल कैलिब्रेशन किया,
और ख़ास करके ऐसे पेशेंट्स में डबल वॉइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार यूरिन करके आए तो 10 मिनट के अंदर फिर से जाना है, फिर अवगाह से टब में बैठ के सेक करना है और कुछ ओरल मेडिसिन। इसके साथ जो परिणाम दिखा, हमने 17 जनवरी 2022 को अभी रिसेंटली ट्रीटमेंट शुरू किया, केवल 8 दिन में उसमें जो सुधार दिखा तो ब्लैडर में जो 1000 ml से भी अधिक ml जो यूरिन था वो 400 ml पे आ गया, जो बाकी रहता था वो भी 200 ml के आसपास आने लगा। और आगे जाते हैं, यूरोफ्लो भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव होने लगा उस बच्चे का। और 22 सिटिंग्स के बाद, 22 सिटिंग्स उत्तरवस्ती के करने के बाद और 2 एरोसोल कैलिब्रेशन करने के बाद अभी स्थिति ऐसी है कि उस बच्चे का ब्लैडर पूरी तरह से खाली होता है, वो भी किसी एफर्ट्स के बगैर, और अंदर कुछ रहता भी नहीं, उसे कोई जोर भी नहीं लगाना पड़ता है। और पहले के जो रिपोर्ट्स है सोनोग्राफी के, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट बैक प्रेशर चेंजेस अर्थात हाइड्रो यूरेटर और हाइड्रोनेफ्रोसिस था, मतलब यूरेटर और किडनीज पे काफ़ी प्रेशर आके सूजन आती है, पानी भरा रहता है, उसमें यूरिन भरा रहता है, तो वो भी एकदम सिग्निफिकेंटली कम हो गया केवल 22 दिन में। और ये केवल आयुर्वेद कर सकता है बिना किसी सर्जरी के, ये विशेषता है आयुर्वेद की। ऐसा ही और एक केस है, ये ऑस्ट्रेलिया से पेशेंट आए थे हमारे पास, एक यंग 23 साल के, उनको भी ऐसी आदत थी कि वो यूरिन रोकते थे। कारण बहुत ही सुंदर था, इनकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग थी कि बचपन में ऐसी स्कूल में सबके सामने एक बार यूरिन लीक हो गया 9-10 साल की उम्र में, तो लीक हो गया तो डर लगा मन में कि मेरा कभी भी यूरिन लीक हो जाएगा, तो उस डर के मारे वो यूरिन कस के पकड़ने लगे कि लीक हो जाएगा। नेक्स्ट, तो उनका भी हमने ट्रीटमेंट किया। उनकी हालत ऐसी थी कि यूरिन निकलता ही नहीं था, मुश्किल से 50 ml जितना यूरिन निकलता था और दर्द काफ़ी अधिक था। तो ये सब उत्तर बस्ती वगैरह करके नेक्स्ट उनकी कंडीशन में इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ कि बहुत अच्छी तरह से वो यूरिन पास करने लगे। 21 दिन के ट्रीटमेंट में लगभग 300-400 ml तक यूरिन पास करने लगे। उनकी भी किडनी पे काफ़ी अच्छी सूजन थी, वो भी सिग्निफिकेंटली कम हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट, एक अंतिम कंडीशन है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस या पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम या हनर्स अल्सर या एलर्जी अल्सर भी कहते हैं। ये एक बहुत ही ख़राब कंडीशन है। आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन की लगभग 60 बार तक होती है दिन में। 24 घंटे उस पेशेंट के दिमाग में एक ही चीज़ लगी रहती है कि मुझे जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। जैसे जैसे ब्लैडर भरने लगेगा तो बहुत दर्द होता है, जलन होती है, इस तरह से जीते हैं और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, ऐसे एक केस यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है मुंबई से, तो इनको ये कंडीशन थी 4 साल से। वो अपना पूरा बिजनेस छोड़ के घर पे बैठे थे। वहाँ के बहुत बड़े हिंदुजा हॉस्पिटल सभी को पता है, वहाँ पे काफ़ी सारा ट्रीटमेंट लिया। एक इंट्रावेसिकुलर कॉकटेल थेरेपी होती है, उसके भी 9 साइकिल लिए पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं था और ब्लैडर कैपेसिटी भी सिग्निफिकेंटली कम हो रही थी। तो उनको एक बड़ा ऑपरेशन बताया था, ऑगमेंटेड सिस्टोप्लास्टी कहते हैं, मतलब ब्लैडर को रिकंस्ट्रक्ट करने का ऑपरेशन होता है कोलोन के स्किन लेकर। तो उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं थी कि वो ठीक होगा और फिर हमने उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ट्रीटमेंट दिया और उसके चलते जिनकी ब्लैडर कैपेसिटी 100 ml जितनी हो गई थी, इतना छोटा हो गया था ब्लैडर, वो पूरा नॉर्मल 400 ml तक का हो गया और उनका ट्रीटमेंट किया था 2016 अक्टूबर में और तब से अब तक वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये था सब कुछ डिसीजेस के बारे में। और एक लास्ट एक प्लीज़ सर, नेक्स्ट, जैसे ये आजकल का सबसे बड़ा इशू है रिकरेंट यूटीआई और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यूटीआई, तो इस कंडीशन के लिए भी आयुर्वेद में बहुत ही प्रभावी चिकित्सा है, जबकि एलोपैथी में ये बहुत कठिन होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यूटीआई। और हम यहाँ पे आयुर्वेद में इसका पूरे आयुर्वेद चिकित्सा से उसको पूरी तरह से मिटा देते हैं और ये आयुर्वेद में निश्चित रूप से संभव है आयुर्वेदिक औषधियों के साथ। नेक्स्ट प्लीज़। इसके भी कुछ काफ़ी सारे केसेस हमारे पास रेगुलर आते रहते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट, ये हाइपोटोनिक ब्लैडर एक कंडीशन होती है, इसमें ब्लैडर की शक्ति कम हो जाती है, ऐसा एक केस है। नेक्स्ट, तो एक पेशेंट आए थे हमारे पास जिनका ब्लैडर की क्षमता ही गई थी कि वो उनको कैथेटर लगा हुआ था, नेचुरल यूरिन आता ही नहीं था और इनका भी हमने ट्रीटमेंट किया और काफ़ी समय से नेक्स्ट प्लीज़, लगभग 2018 से उनको कैथेटर लगा हुआ था। नेक्स्ट प्लीज़। और फिर हमने उनका कैथेटर निकाल दिया आयुर्वेदिक चिकित्सा करके, उत्तर बस्ती वगैरह करके। 22 दिसंबर 2018 को हमने उनका कैथेटर निकाला और तब से आज तक वो बहुत अच्छी तरह से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। नहीं तो कैथेटर लगा हुआ ही था उनका कंटिन्यूस, उसके चलते बहुत अधिक जलन, इन्फेक्शन वगैरह होता था उनको। नेक्स्ट, तो हमने जितने भी कंडीशंस देखे अब तक, यूरिनल स्ट्रक्चर है, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है, रिकरेंट यूटिया है, हाइपोटोनिक ब्लैडर है, या यूरिनरी स्टोन्स, इनकॉन्टिनेंस, इन्यूरोसिस मतलब बेड वेटिंग है,
या न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इन सब के लिए जो भी कन्वेंशनल या पारंपरिक जो यूरोलॉजी है, एलोपैथी है, उसमें कोई प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट नहीं है। और आयुर्वेद में हमारे पास निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावी चिकित्सा है। तो ये विशेषता है आयुर्वेद की। तो ये व्याधि न हो उसके लिए कुछ विशेष मार्गदर्शन यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स। तो उसमें है कि પૂરતું પાણી કે પ્રવાહી પીવું જેનાથી પેશાબ સફેદ થવો જોઈએ, પેશાબ ન રોકવો, સ્વચ્છતા જાળવવી, સુરક્ષિત જાતીય સંબંધ રાખવો, ઠંડા પીણા ન લેવા, વાસી ખોરાક ન લેવો, રાત્રિ ઉજાગરા ન કરવા, દિવસે સૂવું નહીં, નિયમિત કસરત કરવી, યોગાસન ખાસ કરીને વજ્રાસન, પાર્વતી આસન, પવન મુક્તાસન ઇત્યાદि, પ્રાણાયામ, અને ખાસ કરીને સૌથી જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ છે વેગ ધારણ ક્યારેય નહીં કરવું જોઈએ। हमारे इंस्टीट्यूट की विशेषता है कि एक बार मुझे जापान बुलाया था एक कॉन्फ्रेंस के लिए, खास आयुर्वेदिक यूरोलॉजी पे डिस्कशन करने के लिए प्रेजेंटेशन था। जापानीज यूरोलॉजिस्ट हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आके गए जानने के लिए। फिर और भी अलग अलग देशों के नेक्स्ट अलग अलग देशों के जैसे रशिया है, सिंगापुर, इजिप्ट, अल्जीरिया, अलग अलग देशों के यूरोलॉजिस्ट खास हमारे यहाँ पे आए हैं आयुर्वेदिक यूरोलॉजी क्या है ये जानने के लिए। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हम जो भी काम करते हैं उसे अप्रिशिएट किया है, और फ्यूचर में हम इनके साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च भी प्लान कर रहे हैं। तो दर्शक मित्रों, अपना बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ આપનો। દર્શક મિત્રો, ખાસ કરી અને ઘણી વખત એવું કહેવાતું હોય છે કે એવિડન્સ બેઝડ મેડિસિન, તો મને લાગે છે કે આજના કાર્યક્રમની અંદર આપણે સૌએ એ વસ્તુને ખૂબ જ નજીકથી નિહાળી કે એવિડન્સીસ સાથે વર્ષો પહેલાં શાસ્ત્રોની અંદર લખાયેલા કોઈ મૂળભૂત સિદ્ધાંતને પ્રેક્ટિકલી વર્તમાન સમયની અંદર સાબિત કરીને बताવાનું काम सर आप कर ही रहा છો। और उसके लिए सर तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बेस्ट विशेस भी फ्यूचर के लिए, बिकॉज आपने जो अभी बोला है कि ये एरिया इतना अच्छा रिजल्ट देता है, तो आगे चल के इस एरिया में और भी जो पेशेंट्स है उसको आप सर कर पाए। दर्शक मित्रों, કહેવાનો ભાવાર્થ એટલો છે કે ઇન્વેઝિવ સર્જરીઝ, રિકન્સ્ટ્રક્ટિવ સર્જરીઝ, ડાયલિટેશન્સ કે જે માણસનું જીવન દોહલું બનાવી દે છે, ક્વોલિટી લાઈફ મેટર્સ, માત્ર જિંદગી નહીં પરંતુ આયુર્વેદ કહે છે કે સુખાયુ સાથે સાથે હિતાયુ પણ હોવું જોઈએ, સ્વસ્થાયુ જ નહીં સાથે સાથે સુખાયુ પણ હોવું જોઈએ। તો ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ, ખાસ કરીને આ પ્રકારના પેશન્ટ્સ જે વર્ષોથી આ પ્રકારની કોઈ તકલીફોથી પરેશાન હોય છે, આયુર્વેદ એફોર્डेबल, सस्टेनेबल सॉल्यूशन અને ખૂબ જ સરળ કહી શકાય, जैसे कि बहुत ही इजी प्रोसेस मान के एज कम्पेयर टू दिस सम रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज अगर आयुर्वेद दे सकता है, तो मैं समझता हूँ कि हम सबको उसको एक्सेप्ट करने में और उसको आगे हर एक ज़रूरतमंद लोग हैं उनको उनके तक पहुँचाने के लिए डेफिनेटली एक वाहक बनना चाहिए, एक निमित्त बनना चाहिए। सर आज का जो सेशन था वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था और हमारे दर्शकों को पर्टिकुलरली आयुर्वेदिक यूरोलॉजी क्या है और उससे भी ज़्यादा आज से 4000 साल पहले अगर आयुर्वेद में उत्तर बस्ती जैसा एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को इम्प्रोवाइज करके आज के जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ है, यूरोलॉजिकल इश्यूज़ है, उसमें इम्प्रोवाइज करके कैसे रिजल्ट लिया जा सकता है, आ बाबत खूब ज सुंदरताथी आपनी समक्ष राखी। अगेन सर आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। दर्शक मित्रों, आपना प्रश्नों ने आज नहीं लई शकीए कारण के समय पूरो थवा पर छे अने कहेवानो भावार्थ एटलो ज छे के एक प्रयत्न रहे छे स्वास्थ्य व्याख्यान श्रृंखलानो के एवा विषयो के जे वणखेलाड़ेला छे, जेनी अंदर हजू कंईक खूटे छे અને એ વિષયોની અંદર શું આયુષ અથવા આયુષની વિવિધ પથીઝ, આયુષના વિવિધ ચિકિત્સા સિદ્ધાંતો, આયુષના વિવિધ ઉપક્રમો શું કંઈ એડ ઓન વેલ્યુ કરી શકે એમ છે કે કેમ, આ સમજવાનો અને આપના સુધી પહોંચાડવાનો હંમેશા પ્રયત્ન રહેશે। આપણે આજે જોયું કે વર્તમાન સમયમાં મોડર્ન કન્ટેમ્પરરી સાયન્સના જે પેરામીટર્સ છે, જે સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ છે, એનો ઉપયોગ કરીને અને આપણા ભારતીય ચિકિત્સા પદ્ધતિના સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કરીને એક આરોગ્ય સમન્વય, એક વિવિધ પથીનો સમન્વય કરીને કઈ રીતે ખૂબ ઉમદા કામ થઈ શકે એનું એક જીવંત ઉદાહરણ આજના કાર્યક્રમમાં આપણે વિટનેસ કર્યું છે। આગળ પણ આ જ પ્રકારના વિવિધ વિષયોને આપના સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરતા રહીશું। ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર, જય જય ગરવી ગુજરાત।